हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। इसमें बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट विल सी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ statement which shows all monetary transaction of a country with the rest of the world during a period of time। मीन्स दो कंट्री के बीच में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है एक पीरियड ऑफ टाइम में। सेकेंड है दिस ट्रांजेक्शन इज मेड बाय द इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, and and this monetary transaction is related to the four things. The first one is export and import of goods, which is called visible trade. Means you can see with your eyes, like export and import of plant and machinery. And the second one is export and import of services, which is called invisible trade. And the third one is international sale and purchase of the foreign assets, which is stock and bonds. And the last one is international sale and purchase of the real assets, which is plant and machinery. So BOP account records all receipt and payments of a foreign exchange. Means payment from one country to another, it will maintain the records. And it also reflects the performance of our economy in relation to the rest of the world. And also this BOP is a major component of the economy, and it shows the performance of economy and how it will be affect our economy in future as well as in present time. Now we will see the components of BOP account. Its components are current account, capital account, and financial account. So current account means it measures the flow of goods, services, payment between a country and the rest of the world, which include balance of trade, which is export minus import, net factor income such as interest and dividend, and net transfer payment, which is as a foreign aid. So current account also do not give liabilities to a country, as well as do not give future claims. Means services and the export and import of goods, if provided, then you cannot back them. Components of current account is export and import of goods, visible trade, export and import of services, visible invisible trade, and it has two more parts like factor services and non-factor services. So factor services, like you are giving a services to other country, and in return you get a salary or money. So this is factor services. And non-factor services means you are investing in a bank and insurance in other countries, and you are getting a insurance interest and dividend. So this is called non-factor services. And third one is current transfer. I mean, current transfer means your friend is giving money to you from other country, and you're also giving money to them. So this is also called unilateral transfer. So in the next page, you will see a basic data of balance of payment from period of April December 2021, and we will compare this data with 2021 April December 2022. There was a deficit in current account which was minus 118 billion, which was high from 60 billion from 2021 April to December. And in the second, we see that the merchandise export means visible trade or export and import of goods like plant and machinery only. In 2022 April December period, we have a 332 billion of export, and import we have done is about 551 billion. So if you minus import and export, you will get a 218 billion of trade deficit in merchandise export. So how you will calculate current account balance? So x minus m first have to do is, which is export minus import, which is minus 218 billion, plus we have to add the non-factor services, which is insurance and bank receipts, and factor services, which is a salary or profit form, and you have to add also the current account. So you will get the current account balance. Basically, current account balance come in negative form, means current account balance always be in a deficit. So in the next page, we are going to see what are some factors that can impact the current account. So mainly the current account, most important part is export and import. The services sector, factor services and non-factor services and current transfer. These are the parts, but they contribute less, and the export minus import, export and import contribute more in the current account. So basically, in a current account, the export and import is the biggest determinant
whether the current account will be in surplus or a deficit. And during the strong economic expansion means in a country like India, जैसे कि इंडिया भी ग्रो कर रही है, तो इसमें क्या होगा कि import वॉल्यूम टिपिकली सर्ज है। मीन्स अभी कंट्री ग्रो कर रही है, तो इसमें क्या होगा कि इंडिया जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट करेगी मटेरियल अपने कंट्री के अंदर, और अगर एक्सपोर्ट उसी रेट से ग्रो नहीं हुआ तो करंट अकाउंट विल बी इन डेफिसिट, बिकॉज इफ एक्सपोर्ट इज लेस कंपेयर टू द इंपोर्ट, देन करंट अकाउंट ऑलवेज और बीओपी इज ऑलवेज इन deficit. And the same with during recession, the current account will show a surplus if import decline and export increases to a stronger economies. और इसमें एक और फैक्टर है कि जैसे कि एक्सचेंज रेट आपका भी बहुत फैक्टर मैटर करता है कि करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा कि डेफिसिट में जाएगा। मेनली इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, चाइना क्या करता है, वो अपने वो एक्सचेंज रेट के थ्रू ही वो अपना करंट अकाउंट और बीओपी अकाउंट सरप्लस में रखता है। So we will see how exchange rate affect. So exchange rate exert a significant influence on trade balance on a current account and overvalued currency. So यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है आपका, ओवरवैल्यूड करेंसी और अंडरवैल्यूड करेंसी। सो अंडरवैल्यूड करेंसी मीन्स अगर आपका डॉलर रेट अभी $1 इक्वल टू 83 है, आफ्टर अंडर वैल्यूड ये आपका हो जाएगा 80 रुपीज़, अगर और आफ्टर ओवर वैल्यू हो जाएगा आपका 85 रुपीज़। तो ओवर वैल्यू में ये +2 रुपीज़ इंक्रीज हो गया और अंडर वैल्यू में -3 रुपीज़ हो गया। सो अगर आपका करेंसी ओवर वैल्यूड है मीन्स 83 टू 85 है, तो इसमें क्या होगा, इंपोर्ट चीपर हो जाएगा एंड एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव एंड देयर बाय वाइडनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड नोरिंग द सरप्लस। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, $1 83 रुपीज़ है और वो 85 हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि हमारी कंट्री का जो गुड्स है वो महंगा हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, वो ज़्यादा सामान बाहर इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट से क्या होगा, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा और करंट अकाउंट जाएगा डेफिसिट में, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होने से इंपोर्ट ज़्यादा होता है अगर एक्सपोर्ट से, तो करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में जाता है। और इसमें देखते हैं अंडरवैल्यू करेंसी में क्या होगा, बूस्ट एक्सपोर्ट। क्यों, कैसे, देखो इसमें क्या होगा कि हमारा वैल्यू करेंसी गिर जाएगा, मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी रिड्यूसेस, एंड इससे क्या होगा, हमारा सामान सस्ता हो जाएगा, तो बाहर कंट्री के जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे कंट्री से सामान परचेज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज जाएगा और इसमें करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में जाएगा। सो वन मोर थिंग इज दैट it reflects the country competitiveness in global market and its ability to generate income and pay for imports. तो करंट अकाउंट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ट्रेड बैलेंस है, मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अब हम देखते हैं आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट यहाँ पर क्लियर है आपका, तब कैपिटल अकाउंट में देखते हैं क्या है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पर आपका कैपिटल गुड्स से अलग है। कैपिटल अकाउंट मीन्स जस्ट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल गुड्स क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कैपिटल गुड्स और कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट जो है फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स बिटवीन टू कंट्रीज विच इंक्लूड FDIs, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सच एज परचेज ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स एंड कैपिटल फ्लोज। आप बस इसमें यहाँ ध्यान रखो कि कैपिटल गुड्स जो है प्लांट एंड मशीनरी जो कैपिटल अकाउंट में आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैज नथिंग टू डू विद कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। सो कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है आपका बोरोइंग, दूसरा है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बोरोइंग में आपका दो पार्ट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लोन लेता है एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि एक आपने बैंक से लोन लिया, तो उसमें इंटरेस्ट क्या होता है, 8% 10%। और एक दूसरा होता है एक्सटर्नल असिस्टेंट, जो अगर कंट्री दूसरी कंट्री से लोन लेता है, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, विच इज इन द फॉर्म कंसेशनल। सेकंड आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आपका आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड, जो अगर दूसरी कंट्री हमारे कंट्री के बॉन्ड्स और शेयर में इन्वेस्ट करती है। दूसरा FDI आता है कि जो हमारे दूसरे कंट्री के लोग और रिच पीपल हमारे कंट्री में डोमेस्टिक कुछ एंटरप्राइजेस को परचेज करती है, जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा है, बर्गर किंग है, ये क्या है, FDI हमारे कंट्री में। नेक्स्ट में देखते हैं अदर कॉम्पोनेंट कैपिटल अकाउंट क्या है। तो इसमें दो आपको मैंने बता दिया। तीसरा है आपका NRI डिपॉजिट। जो NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो हमारे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिपॉजिट करते हैं, विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। इफ मनी सेंड बाय NRIs in India to their families will then this will be considered as a current transfer which is a part of current account, which is part of current account, not capital account। ठीक है। यहाँ पर चौथा है आपका बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल मीन्स फॉरेन असेस्ट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। मीन्स जैसे एग्जांपल, अगर इंडिया में HDFC बैंक है, अगर उसने किसी दूसरी कंट्री में अगर कुछ फॉरेन असेस्ट होल्ड कर रखा है, तो ये बैंकिंग कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा।
और इससे क्या होता है, ये राइज कर इंक्रीज होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करेगा, जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट हमारे कंट्री में आएगा, तो इससे क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, परचेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट, मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, असेस्ट होगा यहाँ पर। तो कुछ भी अगर हम परचेज करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, लेकिन हम पेमेंट उसको तुरंत ना दें, पेमेंट फ्यूचर के लिए रखें, तो ये भी हमारे में कैपिटल अकाउंट में बेनिफिट होगा। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आप कैपिटल अकाउंट को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली सिंपल, इसमें करंट अकाउंट ले लो आप इसमें आप, लेकिन करंट अकाउंट को आप पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा कि जैसे कि आपको उसमें एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को माइनस करना है, फिर फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर को ऐड करना है, फिर इसमें आप कैपिटल अकाउंट ले लो। और इसमें एरर्स और ओमिशन होता है, जो कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज होती है कैलकुलेट करने में। तो इसमें आपका आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस की, जो कि है आपका कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको मैं इसमें चीज़ बता दूं कि अगर आप कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट देखोगे तो इसमें बेसिकली आपको नेगेटिव मिलेगा, डेफिसिट में मिलेगा। इसमें कैपिटल अकाउंट ऐड करोगे तो आपको उसमें कुछ डेफिसिट और कम हो जाएगा, मीन्स मूव टुवर्ड्स द सरप्लस। तो कैपिटल अकाउंट का ये बेनिफिट है इसमें, लाइक इंटरेस्ट वी गेट। अब सिंपल आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। रिफ्लेक्ट्स कंट्री एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। मीन्स कैपिटल अकाउंट जितना भी हमारा सरप्लस में जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में अट्रैक्ट होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई ज़्यादा होगा, और हमारे पास कैपिटलिटी होगी कि हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है। और सरप्लस और डेफिसिट देखते हैं इसमें। इफ करंट अकाउंट सरप्लस मीन्स कंट्रीज इन्वेस्टिंग मोर अब्रॉड then foreigners are investing in the country, while capital account deficit means that the country is attracting more FDIs investment than investing in abroad. सो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट क्या है। दो आपके हो गए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और फाइनेंशियल अकाउंट देखते हैं, ये कुछ नहीं है आपका, बस एक ओवरऑल बैलेंस है जो ऐड करता है करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट, और जो शोन एज अ ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व ऑफ अ कंट्री एंड इट इज मैनेज बाय द आरबीआई होता है। So if the overall balance is positive, then the increase in official reserve, and if overall balance is negative, then there is a decrease in official reserve. अब आपको एक नोट यहाँ सिंपल समझना है। करंट अकाउंट क्लियर है आपका, कैपिटल अकाउंट क्लियर है, फाइनेंशियल अकाउंट क्या हो गया, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल अकाउंट। सो when official reserve account is always shown as a part of capital account, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज नोट करने का है आपका। अगर कैपिटल जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है और फाइनेंशियल अकाउंट है, अगर पार्ट होता है, दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट का, तो बीओपी ऑलवेज बैलेंस में रहता है और स्टेट इन इक्विलिब्रियम, है ना। और इफ इट इज नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, देन बीओपी में सरप्लस और डेफिसिट। सो यहाँ पर आपको सिंपल ये चीज़ समझना है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि करंट अकाउंट हमेशा मोस्टली जो है वो डेफिसिट में रहता है और कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में रहता है, सरप्लस में। तो अगर ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है, जो ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व है, अगर कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, तो अगर फिर जो पॉजिटिव अमाउंट हो गया, फिर इसको हम उससे जो करंट अकाउंट का जो हमारा डेफिसिट है माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस आएगा पॉजिटिव में। तो इसलिए हमारा हमेशा जो बीओपी होता है सरप्लस में रहता है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बीओपी हमेशा सरप्लस में रहेगा या कभी डेफिसिट में रहेगा, मेनली डेफिसिट में रहता है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल अमाउंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो अब हमारा 600 बिलियन है, और इन द स्टेट ऑफ नहीं, अगर ऐड नहीं करेंगे तो स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम रहता है, और में सरप्लस और डेफिसिट होता है। तो सिंपल इसमें आपको ये समझना है कि जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो एक ऑफिशियल फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया है। अगर बीओपी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट अगर नेगेटिव में है, और अगर हमने फाइनेंशियल अकाउंट को अगर हमने ऐड कर दिया कैपिटल अकाउंट में, तो फिर हमारा जो बैलेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऐड नहीं करेंगे तो बैलेंस हमेशा नेगेटिव में रहेगा। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट। सो पहला आपका इट्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ डोमेस्टिक इकोनॉमी। सो इफ देयर इज हाई बोरोइंग एंड हाई इंपोर्ट, देन इट रिवील्स द डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ज़्यादा इंपोर्ट है हमारी कंट्री में और हाई बोरोइंग है फ्रॉम अदर कंट्री, तो ये क्या होगा कि हम दूसरे कंट्री पे निर्भर है। और एंड इट शो द साइन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, बिकॉज हम एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट, ऊपर से अपने डोमेस्टिक को हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे, बैकवर्ड साइन है ये। नेक्स्ट में देखते हैं इट शोज द मार्केट पोटेंशियल। सो अगर ज़्यादा अगर क्या कहते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी पे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी, और अगर हमारा करेंसी मजबूत है, तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन एफडीआईज हैं या एफआईआईज हैं वो हमारे कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, तो इससे क्या होगा, शोज हाई मार्केट पोटेंशियल इन द इकोनॉमी। Monetary and fiscal policy. So BOP performance of a country impacts monetary and fiscal policy. If there is greater flow of exchange,
फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन देयर इज अ प्रेशर ऑन डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी। मींस अगर दूसरी कंट्री से ज़्यादा FII और FDIs हैं तो गवर्नमेंट RBI को तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा करेंसी की है तो RBI को मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करना पड़ेगा कि करेंसी जनरेट करने के लिए। अगर पुअर सोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट है तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को में पॉइंट टू हार्ड टैक्स लॉज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में है नहीं तो गवर्नमेंट को ज़्यादा हार्ड टैक्स लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इंक्रीज करना है एक्सपेंडिचर अपनी कंट्री में। सो गवर्नमेंट मस्ट फॉर्मुलेट इट्स फिस्कल पॉलिसी। फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सपेंशन विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ AD। सो राइज इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बूस्ट कंट्री एग्रीगेट डिमांड, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर हम देखो, अगर हमारा एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, और अगर आउटपुट बढ़ेगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट करेगा इस पर। So, in conclusion, I will say this: BOP counts shows financial strength of a country in relation to the world. Like India, like less developed country like India, it highlights the need of borrowing and from the rest of the world, and as well as need for the foreign investment. इसमें आपको एक चीज़ और देखना है, इंडिया डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो कि मैंने आपको पहले बताया कि 553 बिलियन का इम्पोर्ट है, 332 बिलियन का एक्सपोर्ट है। तो पहले के कंपेरिजन में 20-30 ईयर्स के बैक देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता था और एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते थे हम लोग। अब क्या है कि दिन ब दिन इंक्रीज हो जा रहा है, तो आने वाले 10-20 साल में अगर देखोगे तो इसमें क्या होगा, हम लोग और इम्प्रूव करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। जैसे चाइना क्या करता है, इम्पोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, तो इसलिए वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और